رسم وفا نبھانا یہ غیرت کی بات ہے۔ رسم وفا نبھانا یہ غیرت کی بات ہے، وہ مجھ کو بھول جائے یہ حیرت کی بات ہے، وہ مجھ کو بھول جائے یہ حیرت کی بات ہے۔ آج اس دور میں ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان خراب ہے یا ہر انسان دھوکے باز ہے یا ہر انسان بے وفا ہے۔ ایسا نہیں، یہ الگ بات ہے کہ یہ دنیا دھوکے باز، بے وفا، دشمنوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں کوئی زورائی نہیں، کوئی شک نہیں کہ واقعی یہ دنیا مطلب پرستوں کی دنیا ہے۔ مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں ہر انسان مطلب پرست ہے، ہر انسان بے وفا ہے، ہر انسان دھوکے باز ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یوں تو کوئی مجبوریاں رہی ہوں گی ورنہ کوئی بے وفا نہیں ہوتا، یوں تو کوئی مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ بے وفائی یا بے توجہی جو کرتے ہیں، وہ اپنی کسی پریشانی کی بنیاد پر یا کسی وجہ سے ایسا آدمی دھوکا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ دھوکے باز ہیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ وفادار بھی ہیں۔ جہاں پر بہت سارے لوگ بے وفا ہیں تو وہاں پر باوفا بھی بہت ہے۔ جہاں پر لوگ غدار ہیں تو وہاں پر وفاداروں کی بھی فہرست طویل ہے۔ یہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ اس آئینے میں جیسا دیکھو گے ویسا ہی دکھے گا۔ تمہارے چہرے پہ داغ ہیں تو تمہیں چہرے پہ داغ دکھائی دیں گے۔ اگر تمہارے اندر برائی ہے تو یہ برائی تم لوگوں کے اندر دیکھو گے۔ تو کہتا ہوں کہ یہ دنیا میں جہاں پر برے لوگ ہیں تو وہاں پر اچھے بھی لوگ ہیں۔ یہ دنیا جہاں پر غدار ہیں تو وہاں پر وفادار بھی ہیں۔ آج دیکھا ہوگا کہ آج ایک انسان نے دوسرے انسان کی مدد کرنا چھوڑ دیا۔ آج ایک انسان نے دوسرے انسان کا سہارا بننا چھوڑ دیا۔ آج ایک دوسرے کی پریشانی میں ہاتھ بٹانا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آج انسان کسی کی پریشانی میں اگر شریک ہو جائے، اس کی مدد کر دے، تو وہ جب پریشانی سے باہر نکل آتا ہے تو اس کے بعد اس کے احسانات کو بھلا دیتا ہے، بلکہ اسی پر سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے انسان اگر کسی کے ساتھ وفاداری کرے، کوئی پریشان ہو مالی اعتبار سے، اس کی مدد کر دے تو اس کے بعد وہ اسی کا باغی ہو جاتا ہے، اسی کا مخالف ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا انسان اگر کوئی ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے دے تو اپنے آپ نکل کر اس کو ہی ڈبانا چاہتا ہے۔ یہ فطرت جو بچھو اور سانپ کے اندر تھی وہ آج انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو فطرت غداری ایک بچھو اور سانپ کے اندر پائی جاتی تھی وہ بعض انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ سانپ یعنی اژدہا کو جتنا چاہیں شہد اس کو چٹائیں، جب وہ اگلے گا تو زہر ہی اگلے گا۔ بچھو کو پورے دن رات آپ دودھ پلائیں لیکن وقت پڑے گا تو وہ ڈنک ہی مارے گا۔ ایسے انسانوں سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے، مگر جہاں پر کوئی بے وفا انسان ہے تو وہاں پر باوفا بھی انسان پائے جاتے ہیں، اور جہاں پر کوئی انسان ایک دوسرے کی وفادار بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر غدار بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں آج جہاں تک دیکھتا ہوں کہ آج ایک انسان نے دوسرے انسان کی مدد کرنا چھوڑ دیا، ایک بھائی نے بھائی کا سہارا بننا چھوڑ دیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ آج سے پہلے کی تاریخیں اٹھا کر دیکھو، اپنے بزرگوں سے معلوم کر کے دیکھو، اگر انسان مالی اعتبار سے پریشان ہوتا تھا تو آدمی اسے پیسہ دے کر اس کی پریشانی کو دور کرتا تھا۔ اگر وہ کھانے پینے کے اعتبار سے پریشانی ہوتی تھی گھر میں تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دوسرے کے گھر میں یہ خیال رکھتا تھا کہ فلاں کے گھر کھانے کو نہیں، اس کے بچے بھوکے ہیں، تو ایک دوسرے کا آدمی بہت زیادہ ہمدرد تھا۔ مگر آج یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ غلطی ہمدردی کرنے والوں کی نہیں ہے، کچھ غلطیاں ان لوگوں کی بھی ہے جن کے ساتھ یہ ہمدردی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں مثال کے ذریعے بتاتا ہوں آج یہ دنیا کتنی پرفتن ہے۔ آج اگر کسی انسان کے تم سہارا بن جاؤ اور کسی کی گلے کی ہڈی نکال دو تو وہ تمہاری گردن کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تم کسی انسان کے سہارا بن جاؤ، اس کے ساتھ دے دو تو وہ تمہیں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا احسان مجھ پہ نہ رہے، یہی ختم ہو جائے۔ ایک نوجوان گھوم رہا تھا، دیکھا کہ ایک اژدہا، ایک سانپ، اس کو ایک نوجوان لاٹھی لے کے دوڑا رہا تھا۔ اس کی جان خطرے میں تھی، بالکل وہ اس پر ڈنڈے لے کر تلا ہوا تھا، کسی طریقے اژدہا مجھے مل جائے میں اس کو ختم کر دوں۔ وہ سانپ اس لاٹھی یعنی اس انسان کے ڈر کے خوف میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔
और बड़ी तेजी के साथ हप रहा था। उधर से एक बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार का गुजर हुआ। उसने देखा ये सांप तो बड़ा परेशान है, तो सांप को अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता फरमा दी। तो सांप उस शख्स से कहने लगा, अय मेरे भाई, मेरी जान खतरे में है, मेरी जान को बचा लीजिए। फुला इंसान लाठी लेकर मुझे हमलावर मुझ पर है, मुझ पे मारने की कोशिश कर रहा है, अभी मुझे मार देगा, मेरी जान आप बचा लीजिएगा। उस शख्स ने कहा कि तू एक सांप है, मैं तुझे कहाँ छुपाऊं, तू जमीन में कहीं छुप जा। उसने कहा नहीं, मुझे आप अपनी चादर में छुपा लीजिएगा। तो उस नौजवान ने, उस शख्स ने कहा मैं चादर में छुपाऊं तो मुझे डसेगा तो नहीं? तो सांप ने कहा नहीं नहीं, आप मेरी जान बचाओगे, मैं आपको क्यों डसूंगा। तो उसने कहा चलो मैं तुझे चादर में छुपा ले रहा हूं। तो सांप ने कहा नहीं, मुझे चादर में मत छुपाइएगा, मुझे अपने अंदर पेट के अंदर रख लीजिएगा, मुझे आप निगल जाइए, मुंह फैला दीजिए, मैं आपके मुंह के जरिए से आपके पेट में उतर जाऊंगा। पेट सबसे महफूज जगह है, वहां पर कोई नहीं मुझे मार सकता। उस शख्स ने कहा तू एक सांप है के अंदर जाके कोई नुकसान तो नहीं करेगा, क्योंकि सांप एक जहरीला सांप होता है, उससे डर तो लगता है। तो उस सांप ने कहा मुझसे डरने की कोई बात नहीं, आप हमारी जान बचाओगे, हम आपकी जान क्यों ले लेंगे। उसने कहा ठीक है, बात तवील हो जाए, मैं मुख्तसर में बताता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं तुझे अपने पेट के अंदर रखता हूँ। उस नौजवान ने सांप को लिया, अपने मुंह के राह निकल कर पेट पे पहुंचा दिया। वही शख्स डंडा लेकर नौजवान ढूंढ रहा था। उसने कहा आपने इधर सांप अजदहा को तो नहीं देखा? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो किसी सांप को नहीं देखा। वो चला गया। उसके बाद ये सांप पेट के अंदर था, तो उसको पता चला कि वो शख्स चला गया। उसने कहा कि हाँ, अब तुम मेरे पेट से बाहर आ जाओ, और वो तुम्हारी जान जो लेने पर तुला हुआ था वो चला गया है। तो सांप ने उसके मुंह उसने फैलाया, उसने अपना फन बाहर निकाल कर देखा, उसने बाहर झांक कर देखा कि वाकई वो चला गया। जब वो चला गया तो फिर पेट के अंदर चला गया। उसने कहा देख, तूने मेरी जान तो बचाई, मगर अब एक जान तो जरूरी जाएगी। अब मेरी जान बच गई, मगर अब तेरी जान नहीं बचेगी, मैं तुझे जरूर डसूंगा। तो उसने कहा मैंने तो तेरी जान बचाई है। तो उसने कहा अब मैं तेरे कलेजे या तेरे जिगर के या तेरे दिल के इतने टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि तू यहीं पे तड़पा तड़पा के मर जाएगा, तू यहीं पे तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा। वो शख्स ने कहा, उसकी आंखें अश्कबार हो गई। उसने कहा मैंने तो तेरे साथ मदद की, तू मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों करेगा। उसने कहा देखिए, जान लेना एक दूसरे की अब जरूरी है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरी ये फितरत है कि मैं तुझे डसूंगा जरूर। अब जिसकी जो फितरत होती वो इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आता है। ऐसे मेरे भाइयों, आज ये मिसाल मैं आपको सामने पेश कर रहा हूं लोगों के एतबार से। ऐसे लोगों की जो फितरत है वो चाहे कितने अच्छे नेक सीरत वाले क्यों ना बन जाएं, नेक सूरत क्यों ना अख्तियार कर लें, चाहे वो कितना अच्छा अखलाक कितना अच्छा किरदार क्यों ना पेश कर दे, मगर जिसकी फितरत दगा देना है तो वो एक ना दिन तुम्हें दगा देगा जरूर। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन हो, वो चाहे तुम्हारा कितना अजीज तुम्हारा कितना प्यारा क्यों ना बन जाए, मगर एक ना एक दिन वो दुश्मनी से अपने हाथ को जरूर रंग लेगा। अब देखा, अब वो नौजवान बहुत परेशान, अब तो उसकी जान खतरे में बारहा कहता है, बार बार कहता देख भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने तेरी जान को बचाया है, मेरी जान को बख्श दे, मेरी जान मत ले, मैंने तेरी जान पर बचाया, मैंने तेरे साथ हमदर्दी की, तू मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना कर। मगर वो कहता नहीं, तूने मेरे साथ हमदर्दी करके बहुत बड़ा धोखा खाया, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस तरीके से आजकल के लोग, अगर उनको कोई परेशानी से उससे बचा लिया जाए या परेशानी के हाल में उनकी मदद कर दी जाए या डूबते हुए का सहारा दे दिया जाए, तो वो इंसान अपनी जान जब बच जाती है तो दूसरे की जान लेने पे आमदा हो जाते हैं। अगर इंसान की तुम इज्जत बचा लोगे तो ही इंसान आज इतना जालिम इतना बेवफा है, जिसकी इज्जत को तुम बचाओगे वही तुम्हारी इज्जत को दागदार और तार तार करने की कोशिश करेगा। आज का ये दौर है, मैंने इस दौर को अपना कर आजमा कर देखा है, आप हजरात ने भी देखा होगा कि मैंने कहा नहीं था आज एक इंसान ने दूसरे इंसान की मदद करना छोड़ दिया। ये मदद करने वालों ने छोड़ा, उनकी ही गलती नहीं है, बल्कि जिनके साथ मदद की जाती थी उन लोगों ने भी गलतियां की हैं। आज मैंने देखा बहुत सारे लोगों की जिसने मदद की, बाद में क्या हुआ कि उन्हीं के ऊपर कीचड़ उछाल दिया गया। जिसने तुम्हें खाने के लिए गल्ला दे दिया, तुम अपने पैरों पर खड़े हुए तुमने उसी किसान की जमीन को छीन लिया। जिस इंसान ने तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाया, तुमने उसी की प्लेट में छेद कर दिया। आज इंसान की पोजीशन ऐसी हो चुकी है हमारी लोगों की। तो सांप ने कहा तुझे काटूंगा जरूर। अब उसको भरोसा हो गया कि अब ये सांप मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे तो डस कर ही रहेगा, मुझे बख्शेगा नहीं। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैंने तेरी जान बचाई, अगर तू उसके सिले में मुझे डसना चाहता तो डस लेना, मगर फुला पहाड़ी तक मुझे पहुंचा दे ताकि मैं अपने मरने का इंतजाम वहां ठीक ठाक से कर लूं। तो उसने कहा, सांप ने कहा ठीक है चल पहाड़ी पर चल, मैं तुझे वहां डस लूंगा।
तो पहाड़ी पर लेकर गया। उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार तू बड़ा रहीम व करीम है, मुझ पर रहम कर दे, इस जहरीले असदहा से मेरी जान को बचा ले, इस दुश्मन से मेरी जान को बचा ले, तू परवरदिगार बड़ा रहीम व करीम, मुझ पर रहम अपना फरमा दे। उसने दुआएं करना शुरू कर दी। तो मुसलमानों, जैसे उसने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी दुआ मकबूल हो गई। एक बात और भी यहाँ पर याद रखो, अभी आगे और मैं पूरी बात वाकया सुनाता हूँ, पहले एक बात को ये भी याद कर लेना, अगर कोई नेकी इंसान करता है उसके बाद तुम्हें नेकियों का सिला बुराई के साथ देता है, तो ये ना समझो कि दुनिया में उसने मुझे नेकी का बदला बुराई से दिया है, यहीं पे इसका मामला खत्म हो जाएगा नेकी और बुराई का। ऐसा नहीं है। अगर तुमने किसी के साथ नेकी की तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारी नेकी को शुमार कर लिया गया, रजिस्टर में लिख लिया गया है। अगर तुमने किसी के साथ वफादारी की, अगले ने तुम्हारे साथ दुश्मनी की है, तो उसकी दुश्मनी भी लिखी जाएगी, तुम्हारी वफादारी भी लिखी जाएगी। अगर तुमने किसी को अपने घर में खाना खिलाया है और अगले ने तुम्हारे घर की प्लेट में ही छेद कर दिया, तो तुम्हारा खाना खिलाना भी लिखा जाएगा, तुम्हारी नेकी अल्लाह के यहाँ लिखी जाएगी और उसकी बुराई भी लिखी जाएगी। इसका बदला अगर लोगों ने तुम्हें गलत दिया है, लेकिन इसका सिला अल्लाह के यहाँ तुम्हें बेहतर मिलने वाला और बेहतर मिलेगा। तो उसने कहा मुझे पहाड़ी के पास ले चल। सांप ने कहा चलिए मैं तुझे ले चलता हूँ। जब वो शख्स पहाड़ी के पास गया तो उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, मौला तू बड़ा रहीम व करीम है, तू मेरी जान को बचा ले, तू तो रहीम रहम फरमा दे मुझ पर। इतना कहा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी दुआ को कबूल की गई दुआ, और फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ता जन्नत में गया। जाने के बाद एक दरख्त की पत्ती को लेकर आया। आने के बाद उस नौजवान के सामने नमूदार हुआ, हाजिर हुआ और कहा कि इन पत्तियों को खा लीजिएगा। जैसे ही तारीख शाहिद मुसलमानों, मैंने शॉर्टकट में बात को बताया, सिर्फ आप लोगों तक एक समझाने का मैसेज दिया है। जैसे उस शख्स ने पत्ती को मुंह के अंदर निवाला बनाकर चुबाया, पेट के अंदर पत्तियों का जाना था कि सांप के कई टुकड़े हो गए, टुकड़े हो करके पलटी हुई, उनके मुंह की राह से सारे के सारे सांप के टुकड़े निकल गए। अब यहां से बताने का मकसद ये है मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ गद्दारी करता है तो करने दीजिए, अपने सारे मामलात को अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में छोड़ दीजिए। अगर तुम किसी के साथ भलाई करते हो तो भलाई कीजिएगा, ये ना सोचिएगा मैं इसके साथ भलाई करूंगा मगर ये भलाई का सिला मुझे दुश्मनी के साथ देगा, तो ये मत सोचिएगा दुश्मनी के साथ देगा, बल्कि अपनी भलाई का मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत के सहारे छोड़ दीजिएगा। अगर तुमने भलाई की, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सहारे छोड़ दिया अपने सारे काम को, अगर वो दुश्मनी भी करेगा तो उसकी दुश्मनी उसी के लिए वो दुश्मनी बन जाएगी। आपकी नेकी जो आप करेंगे तो उसका सिला अल्लाह के आपको जरूर मिलेगा। ऐसे ही आज भी सांप के मानिंद बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जिनके साथ तुम भलाइयां करोगे, एक दिन वक्त आएगा वही तुम्हें डसने की कोशिश करेगी। आज जिस इंसान के सहारा तुम बन जाओगे वही एक दिन तुम्हें बेसहारा छोड़ देगा। आज तुम जिस इंसान के लिए वफादारी की बातें करोगे वही इंसान चौराहे पर तुम्हारी गद्दारी की बातें पेश करेगा। जिस इंसान को आज तुम भरे मजलिस में, भरी अदालत में, भरी गांव के अंदर, पूरी बस्ती के अंदर तुम किसी की इज्जत को बचाओगे, वही इंसान सबसे पहले तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा। ये तो मैं जानता हूं दुनिया ऐसी है, मगर एक बात याद रखना मुसलमानों, अगर तुम किसी की इज्जत बचाओगे, वो तुम्हारी दुनियादार इंसान बचाए ना बचाए मगर अल्लाह तुम्हारी इज्जत को जरूर बचाएगा। अगर तुम किसी के साथ वफादारी करोगे, दुनिया तुम्हारे साथ गद्दारी करे, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के तुम्हारी नेकी लिखी जाएगी। अल्लाह तुम्हारे साथ वफादारी करेगा, वो करता है तो करे। कोई भी काम किया करो, अपना सारा काम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सफुर्द कर दिया करो, अल्लाह के कुदरत के ऊपर छोड़ दिया करो। दुनिया चाहे कितनी भी दुश्मनी क्यों ना कर ले, मगर अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ तुम्हारी नेकी का बदला तुम्हें जरूर दिया जाएगा। अल्लाह हम सबको हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए और सच्चाईयत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला मुसलमान